Hello everyone, I am Monica. In this video, I am going to explain The Sunshine Cat, a poem written by Kamla Das. Kamla Das belongs to a traditional Nair family of South India. She is the most original and bold Indo Anglian poetess who is as unconventional and shocking in her themes as she is a revolutionary in her diction. She has published 3 volumes of poetry containing approximately 92 poems, out of which 85 poems are directly or indirectly concerned with the theme of love. The Sunshine Cat depicts the miserable condition of the poet because she had failed in her search for true elevated love. In the absence of a meaningful and healthy relationship with her husband, she turns to strangers for love, who in turn can give temporary relief but not true love. This poem is about cynic nature of man, which makes them see the woman as merely an object of lust. They do not have any emotional attachment with the woman. Rather, they use the woman for satisfying their lust. Let's start the poem. They did this to her, the man who know her, the man she loved, who loved her not enough. दे यहाँ मेल के लिए यूज़ किया गया है, हर यहाँ पोइटस के लिए यूज़ किया गया है, कमला दास के लिए यूज़ किया गया है। हालांकि कमला दास ने कहा है कि एक काल्पनिक लेडी उसने मान लिया है कि ये किसी एक लेडी की कहानी है, लेकिन जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि इस पोएम के थ्रू कमला दास ने अपने जीवन में होने वाले जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको बताया है। तो यहाँ किसी और की कहानी नहीं है बल्कि खुद कमला दास की कहानी है, ऐसा क्रिटिक्स कहते हैं। दे डिड दिस टू हर, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, पुरुषों ने मेरे साथ ऐसा किया। द मैन हु नो हर, वो व्यक्ति, वो आदमी जो उसे जानते हैं। द मैन शी लव्ड, वो आदमी, मैन यहाँ कमला दास के हस्बैंड के लिए यूज़ किया गया है। द मैन शी लव्ड, वह आदमी जिसे उसने प्यार किया। हु लव्ड हर नॉट इनफ, परंतु रिटर्न में उस पर्सन ने उससे उतना प्यार नहीं किया। द पोएट begins the poem with the words, they did this to her. The very first line of the poem indicates that the poem is about a victim who is a female. The further says that she loved the man who knew her, and that is her husband and her lovers. However, they never loved her enough. Being selfish and a coward, she says that her husband was selfish and coward. वो कहती हैं कि उसका पति स्वार्थी था और डरपोक था। द हस्बैंड हु नीदर लव्ड नोर यूज्ड हर, उसका हस्बैंड जिसने ना तो कभी उससे प्रेम किया ना ही यूज्ड हर। वी डू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लव, बट द वर्ड नॉट यूज्ड हर इज confusing. It means he never considered her as his partner but rather an object for satisfying his lust. But was a ruthless watcher, ruthless Nirday, Darshak, and the band of cynics she turned to, बल्कि उसका हस्बैंड तो एक निर्दयी दर्शक की तरह से रहा। एंड द बैंड ऑफ सिनिक्स शी टर्न टू, clinging to their chest where new hairs sprouted like great winged moths, burrowing her face into their smell and their young lust to forget, oh, to forget. When she was not satisfied with her husband, then she turned to some other persons, and those other persons were young than Kamla Das. New hair sprouted shows the young age of male persons. तो कमला दास प्रेम की तलाश में दूसरों की तरफ मुड़ी। उन
पर्सन्स की तरफ जो उससे उम्र में यंग थे। ग्रेट विंग्ड moths burrowing her face, and she hides her face in the comfort zone of those persons and their young lust to forget, oh forget. वो वहाँ पहुँचकर सब कुछ भूल जाना चाहती थी। एंड दे सेड, दे यहाँ यूज़ किया गया है अदर पर्सन्स के लिए, उन पर्सन्स के लिए जिनके कमला दास से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रहे। तो उन्होंने कहा, ईच ऑफ देम, हर किसी ने कहा, ऐसा नहीं कि किसी एक पर्सन ने कहा, सब ने कहा, आई डू नॉट लव, आई कैन नॉट लव, इट इज़ नॉट इन माई नेचर टू लव, बट आई कैन बी काइंड टू यू। उन्होंने कहा, मैं प्यार नहीं करता, मैं प्यार नहीं कर सकता, प्यार करना मेरी प्रकृति में ही नहीं है, हाँ मैं तुम पर दया कर सकता हूँ। तो यहाँ एक बेसिक नेचर भी दिखाया गया है मेल का। बैंड ऑफ सिनिक्स, सिनिक्स वो लोग होते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। तो यहाँ दिखाया गया है कि हर लवर्स वर नो डिफरेंट फ्रॉम हर हस्बैंड, कि जो उसके लवर्स हैं वो भी उसके हस्बैंड से डिफरेंट नहीं हैं। द वर्ड काइंड इज़ प्रॉब्लमेटिक हेयर। The same kindness is shown by her husband as well. Their kindness is not something which Kamala Das needs. Moreover, their kindness reflects that they are just like her husband. They let her slide from pegs of insanity into a bed made soft with tears, and she lay there weeping. इनसेन होता है पागलपन, सैनिटी मीन्स पूरे होशो हवाश में। पैग ऑफ सैनिटी हेयर मीन्स दैट शी वॉज क्वाइट वाइज इन थिंकिंग, शी वॉज हैप्पी एंड होपफुल, कि जो कमला दास है वो पूरे अपने होशो हवाश में है, बुद्धिमान है वो। बट द कोल्ड बिहेवियर टुवर्ड्स हर, द मेल्स कोल्ड बिहेवियर टुवर्ड्स हर, so sorrowful that her wisdom, health, and all the good things withered away, and she kept weeping, which made even her bed wet and soft with tears, and she never sleeps because sleep had lost its use. हालांकि वो समझदार थी, लेकिन उसकी सारी समझदारी मेल्स के बिहेवियर की वजह से, उसकी हेल्थ, उसकी समझदारी सभी कुछ चली गई। और फिर वो अपने बिस्तर पर आकर आंसू बहाने लगी। एंड शी ले देयर वीपिंग, और वहाँ वो रो रही थी। फॉर स्लीप हैड लॉस्ट इट्स यूज़, और अब नींद भी खो गई थी। आई शैल बिल्ड वॉल्स विद टीयर्स, शी सेड, walls to shut me in. She says that she will weep enough to build walls with tears, walls in which she will shut herself in. Wall means an external protection against those who desire her body. She is probably trying to say that she will give up all her sexual desires and her emotions and thus alienate from the world, especially man. मीन्स वो इतना रोई कि उसे लग रहा था कि उसे अपने चारों तरफ आंसुओं की दीवार भी वो बना लेगी। यहाँ जो वॉल वर्ड यूज़ किया गया है वो एक्सटर्नल प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया गया है, बाहरी लोगों से अपने आप को बचाना, प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया गया है। हर हस्बैंड शट हर इन every morning, locked her in a room of books, with a streak of sunshine lying near the door like a yellow cat to keep her company. अब जब कमला दास के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रहे उनसे यंग पर्सन्स के साथ, तो उनके हस्बैंड ने उनको शट कर दिया, उनको बंद कर दिया। हर सुबह
वो उसे बंद कर जाते। लॉक्ड हर इन अ रूम ऑफ बुक्स, किताबों का एक कमरा था, वहाँ पर उसे लॉक कर देते, बाहर से ताला बंद कर देते। विद अ स्ट्रीक ऑफ सनशाइन, जहाँ पर एक सूरज की रोशनी की किरण लाइंग नियर द डोर, दरवाजे के नज़दीक आती। क्योंकि ये पोएम बहुत पहले लिखी गई है, पुराने टाइम के घर हुआ करते और उस वक्त जब दरवाजे बंद हुआ करते तो उसके नीचे से स्पेस हुआ करता। तो बाहर जब रोशनी है तो उस रोशनी से, दरवाजे के नीचे वाले स्पेस से जो सूरज की रोशनी है वो अंदर आती है। और वो सूरज की रोशनी इस तरह से लगती है जैसे कि एक येलो कैट है, टू कीप हर कंपनी, जो उसको कंपनी देने के लिए आ गई है, जो कमला दास को कंपनी देने के लिए आ गई है। सो हेयर वी कम टू नो दैट द पोएट अगेन रिटर्न्स बैक टू हर हस्बैंड एंड हर लाइफ इन हर हाउस। And according to Kamala Das, her husband shut her in every morning. She was locked in a room in which there was none to give her company but books and a streak of sunshine lying near the door like a yellow cat. There is no cat. यहाँ पर कोई बिल्ली नहीं है। There is no cat but rays, which she imagines in her thoughts to be a cat. In a way, she has made the books and the sunshine her companion. तो यहाँ एक इमेजिनेशन दिखाई गई है कि जो सूरज की रोशनी है वो एक येलो कैट की तरह से लगती है। येलो कलर जो प्रतीक है उत्साह का, तो वो कमला दास लॉक्ड है एक कमरे के अंदर, जिस कमरे के अंदर किताबें हैं और सिर्फ एक हल्की सी किरण रोशनी की आती है। बट सून विंटर केम, परंतु जल्दी ही सर्दियाँ आ गई। एंड वन डे वाइल लॉकिंग हर इन ही नोटिस्ड दैट द कैट ऑफ सनशाइन वॉज ओनली अ लाइन, अ हाफ थिन लाइन। And in the evening, when he returned to take her out, she was a cold and half dead woman, now of no use at all to man. सर्दियाँ आ गई। एक दिन जब उसका हस्बैंड उसको लॉक कर रहा था, कमरे में बंद कर रहा था, तब उसके हस्बैंड ने नोटिस किया कि जो सनशाइन है, सूरज की रोशनी है, वो अब सिर्फ एक पतली सी लाइन बनकर रह गई है। गर्मियों में सूरज तेज चमकेगा तो जो लाइन है वो बड़ी होगी, थोड़ी मोटी होगी। सर्दियों में सूरज इतना नहीं चमकेगा, तो जो सूरज की रोशनी है जो उस दरवाजे की दरार में से आ रही है वो भी बहुत थिन हो गई है, पतली हो गई है। एंड इन द इवनिंग, और शाम के समय, व्हेन ही रिटर्न टू टेक हर आउट, जब वो वापस आया और उसने उसको बाहर निकाला, शी वॉज अ कोल्ड एंड हाफ डेड वुमेन, वो बिल्कुल ठंडी और एक आधी मरी हुई महिला की तरह से थी, जो फिजिकली, जिसमें सांसें तो चल रही थी लेकिन वो आधी मर चुकी थी। नाउ ऑफ नो यूज़ एट ऑल टू मैन, जिसका अब मैन के लिए कोई यूज़ नहीं था। यहाँ कमला दास ने एक सिंबल यूज़ किया है, सूरज की रोशनी और कमला दास की खुद की लाइफ को एक साथ जोड़कर। कमला दास लाइफ and the thickness symbolically become one, and like the rays, the life or youth in Kamala Das was also shortened. When she returned back home, when her husband returned back home, he finally took her out. But Kamala Das was a cold and half dead woman, now of no use at all to man. Like the moth or the rays, she was dead now because she remained confined in the thick walls of her tears. She lost her hope, she lost her desire, she lost her sexual power, and even her life. So, the poem throws light on the condition of women in the society. Thank you.